جب تک عبادت ہوگی اللہ کی بارگاہ سے آپ کو ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو بہتر تو یہ ہے کہ اپنے گھروں سے زیادہ مدرسے کا خیال رکھنا چاہیے، بے شک باقی یہ آپ کی اپنی سمجھ ہے۔ آج کا یہ عظیم الشان جلسہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد منانے کے تعلق سے رکھا گیا۔ حالانکہ میں نے جس آیت مبارکہ کو عنوان سخن بنایا، جو بنا دیا ایک بار ویسے ہی کر دو، چھیڑو مت اسے۔ ہاں میں کیا عرض کر رہا تھا، ذرا یاد دلائیے، یہ بھی تو سمجھ میں ہے کہ آپ کتنا سن رہے ہیں۔ بولیے، سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد منانے کے تعلق سے آپ نے اس جلسے کو سجایا، لیکن جو میں نے آیت مبارکہ کی تلاوت کی ہے وہ یہ ہے کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ، رسول جو عطا کرے بولے۔ سبحان اللہ۔ تو یہاں غوث اعظم کا تو معاملہ نہیں آیا، آیت تو ڈائریکٹ رسول پاک تک جا رہی ہے کہ رسول جو عطا کرے وہ لے لو۔ تو غوث بھی تو رسول نے عطا کیے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ غوث اعظم رسول کی عطا کا نام ہے، غریب نواز رسول کی عطا کا نام ہے۔ اللہ کا ہر ولی رسول کے عطا ہی سے ہمیں ملا ہے، سبحان اللہ۔ تو کیوں نہ ہم رسول کی عطا کو دیکھیں۔ اب کہنے والے کہتے ہیں رسول جب عطا کرتے ہیں، اللہ خود کہہ رہا ہے کہ رسول جو عطا کرے وہ لے لو، حالانکہ سننے میں یہ آیا ہے کہ جو عطا کرتا ہے، جو دیتا ہے وہ اللہ دیتا ہے۔ اللہ کے سوا کوئی دیتا ہے؟ اللہ کے سوا کوئی نہیں دیتا، مگر اللہ خود قرآن میں کہہ رہا ہے کہ رسول جو عطا کرے وہ لے لو۔ اس کا مطلب کہ رسول عطا کرتے ہیں، رسول کے پاس ہے تبھی تو عطا کرنے کے لیے اللہ نے فرمایا کہ رسول کی عطا سے تمہیں ملے گا، لیکن مانگنے کا سلیقہ ہونا چاہیے، مانگنے کا انداز ہونا چاہیے۔ نبی بھی دیتے ہیں، علی بھی دیتے ہیں، اور اللہ اور رسول کے کرم سے ولی بھی عطا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور غوث اعظم ولیوں کے تاجدار ہیں، ولیوں کے سردار ہیں، آل رسول ہیں، آل نبی ہیں، آل علی ہیں۔ اچھا یہ بتائیے یہاں کتنے علی والے ہیں؟ بس دو چار آدمی علی والے ہیں۔ علی والے کتنے ہیں؟ ہاتھ اٹھائیے۔ ابھی بھی کچھ کے ہاتھ اٹھے ہیں، کچھ کے نہیں اٹھے۔ علی والے نہیں ہیں؟ ارے جو علی والا نہیں وہ نبی والا نہیں، کیونکہ نبی فرما رہے ہیں جس کا مولا میں اس کا مولا علی، جس کے علی مولا نہیں اس کا میں آقا نہیں۔ اچھا اب نبی والے ہاتھ اٹھا دیں۔ بھئی ہم بھی نبی والے ہیں، سب نبی والے ہیں، سب علی والے ہیں۔ ہو سکتا ہے اللہ تعالی ہماری اسی ادا کو پسند کر لے۔ تو مولا علی کے تعلق سے میں چند شعر پڑھ رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ سماعت فرمائیں گے اور سبحان اللہ ضرور کہیں گے، اگر بات اچھی لگے تو سبحان اللہ کہیں۔ ابھی ہم سے پہلے مولانا صاحب کا کیا نام ہے؟ احمد رضا۔ مولانا احمد رضا صاحب، میں ہندوستان بھر میں تقریر کرتا ہوں، کبھی اتنا پریشان نہیں ہوا، آج پہلی بار بہت زیادہ پریشان ہو گیا، کیونکہ انہوں نے جو بھی تقریر کی مجھے کچھ بھی نہیں سمجھ میں آیا کہ انہوں نے کیا کیا، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اسے ریپیٹ نہ کر دوں۔ تو اگر ریپیٹ کر جاؤں، دوبارہ ہو جائے تو آپ سمجھ جائیے گا کہ ہمارے سمجھ میں نہیں آیا، کوئی خیال مت کیجیے گا۔ چلیے محبت سے ایک بار درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ۔ ولی خالق زمن حبیب شاہ ظلمنن، علی ہے شمع الجمن، بہار باغ پنجتن۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب معلوم ہوا سب علی والے ہیں۔ ولی خالق زمن حبیب شاہ ظلمنن، علی ہے شمع الجمن، بہار باغ پنجتن۔ فضا فضا چمن چمن، مہک اٹھے گل و سمن، فضا فضا چمن چمن،
महक उठे गुलो समन चटाक बोली हर कली अली 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 सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद अली का हर आला हजरत अली का हर चाहने वाला मौला अली का ऐसा ही मुजाहिद होना चाहिए। सुभान अल्लाह अली 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 कौन अली? नबी की गोद में पले हरम की छांव के तले वो जोश और वलवल के कांपते थे मरहले। सुभान अल्लाह नबी की गोद में पले हरम सुभान अल्लाह। वो मौलाए कायनात अल्लाह ताला ने दुनिया में सबको अलग अलग फजीलत का मालिक बनाया। किसी को सरताजे औलिया बनाया, किसी को हिंदुस्तान के वलियों का ताजदार बनाया, किसी को सैयद ताइफा बनाया, किसी को सिद्दीक़ अकबर के लक़ब से नवाजा गया, किसी को फारूक आजम का मनसब दिया गया, किसी को उस्मान गनी का उहदा अता किया गया। मगर एक जात मौलाए कायनात की है कि जिसे अल्लाह ने खाने काबा यानी अपने घर में पैदा फरमाया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये बड़े एजाज की बात है, बड़े मर्तबे की बात है, बड़ी अज़मतों की बात है। अल्लाह चाहता तो किसी को भी पैदा कर सकता था। गरीब नवाज को भी काबे में पैदा किया जा सकता था, बख्तियार काकी को भी पैदा किया जा सकता था, बाबा फरीद गंज शकर को भी पैदा किया जाता था, वलियों के सरदार सरकार गौसे आजम को पैदा किया जा सकता था, सैयद ताइफा जुनैद बगदादी को भी ये मनसब अता किया जा सकता था। सिद्दीक़ अकबर जिनके लिए अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया अल्लाह की तमाम मखलूक में सबसे ज्यादा अगर कोई अफजल नबियों के बाद है तो वो सिद्दीक़ अकबर है। अल्लाह चाहता तो सिद्दीक़ अकबर को भी काबे में पैदा कर सकता था। फारूक आजम के लिए नबी फरमाते हैं अगर अल्लाह किसी को मेरे बाद मनसबे नबूवत में फाइज करता तो वो उमर होते, मगर नबूवत का दरवाजा मुझ पे बंद हो गया तो उमर नबी ना बने, नबी ना बने, उमर को भी ये फजीलत हासिल हो सकती थी। उस्मान गनी के लिए अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं कितना खुश है, फरमाते हैं कि अगर अल्लाह मुझे 100 बेटियां देता, यके बाप दी करे एक एक बेटी उस्मान के निकाह में दे देता। अल्लाह के नबी ने इतना बड़ा मनसब बताया। अल्लाह चाहता उस्मान गनी को भी काबे में पैदा कर सकता था, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कर सकता था कि नहीं? ये तो चलो सहाबा है, ये तो सहाबा है। अगर अल्लाह चाहता नबियों को पैदा कर सकता था। हजरत ईसा भी काबे में पैदा हो सकते थे, हजरत मूसा भी काबे में पैदा हो सकते थे, हजरत सुलेमान भी पैदा हो सकते थे, हजरत इलियास भी पैदा हो सकते थे, हजरत नूह भी पैदा हो सकते थे, यहाँ तक के तमाम नबियों के ताजदार सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी काबे में पैदा हो सकते थे, मगर नहीं पैदा हुए। ये फजीलत मिली तो किसको मिली? एक जात मौला अली। यहाँ तक कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की जब विलादत का वक्त करीब आया, अल्लाह ने इरशाद फरमाया हजरत मरियम से कि इबादत खाने से बाहर निकल जाओ, इबादत खाने से बाहर निकल जाओ। और यहाँ जब मौला अली की विलादत का वक्त करीब आया तो मौला अली की वालिदा का नाम फातिमा बिनते असद उस वक्त खाने काबा के तवाफ में मसरूफ थी। अचानक जब दर्दे ज़े हुआ, आसारे विलादत नमूदार होने लगे, उस वक्त अल्लाह की बारगाह में हाथों को उठाया, ए मलिका बादशाह, ए बंदा नवाज, ए परवरदिगार, इस वक्त इस कनीज की इज्जत और आबरू का मुहाफिज तू है परवरदिगार, अपनी इस कनीज की आबरू बचा ले। इतना कहना था, खाने काबा की दीवार शक हो गई, आवाज आई, ए फातिमा बिनते असद अंदर आ जाओ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अली की विलादत के लिए काबे की दीवार शक हो गई।
फातिमा बिनते असद गई, अंदर मौला अली पैदा हुए। अल्लाह अल्लाह, अली काबे में पैदा हुए। एक दिन गुजर गया, आंखें अली ने ना खोली। दूसरा दिन गुजर गया, अली ने आंखें ना खोली। 3 दिन गुजर गए, अली ने आंखें ना खोली। रिश्तेदारों ने आवाज लगाई, अली ने आंखें ना खोली। अपनों ने आवाज लगाई, अली ने आंखें ना खोली। परायों ने आवाज लगाई, अली ने आंखें ना खोली। चचा पुकार रहे हैं, अली आंखें नहीं खोल रहे। माँ ने आवाज लगाई, अली ने आंखें न खोली। 3 दिन के बाद जब नबी तशरीफ लाए, फातिमा बिनते असद ने अली को मुस्तफा की गोद में दे दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जैसे ही अली नबी की गोद में आए, मुअर्रिख फरमाते हैं अली ने आंखें खोल के मुस्तफा को देख लिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आलम तसव्वुर में सवाल किया, ए मौलाए कायनात, 3 दिन पहले भी तो आंखें खोल सकते। अगर 3 दिन पहले आंखें खोल लेते तो काबे के दरो दीवार नजर आते, सफा मरवा की सही के मुकद्दस मकामात नजर आते, मकामे इब्राहिम नजर आता। ये सब अफजल है। अली की बारगाह में सवाल किया, 3 दिन पहले आंखें क्यों ना खोली, 3 दिन के बाद क्यों खोली? आलम तसव्वुर में जवाब मिला, अगर 3 दिन पहले आंखें खोलता तो काबे के दरो दीवार नजर आते। 3 दिन के बाद आंखें खोली है तो जलवे अहमद मुख्तार नजर आ रहा है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। बहरहाल वो बात तो अधूरी ही रह गई कि ये मनसब अली ही को क्यों मिला, अली ही काबे में क्यों पैदा हुए। अल्लाह चाहता किसी को भी पैदा कर देता। अली का बचपना देखा, बात समझ में नहीं आई। अली का चलना फिरना देखा, बात समझ में नहीं आई। अली का उठना बैठना देखा, बात समझ में नहीं आई। अली की जवानी देखी, जब सैयदा फातिमा तो ज़हरा से निकाह मौला अली का हुआ, तब समझ में आया अल्लाह ने पहले ही ये तय कर लिया है, मशीयत रब्बानी ने ये तय कर लिया था कि अगर दुल्हन मुस्तफा के घर की होगी तो दूल्हा खुदा के घर का होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए मौलाए कायनात काबे में पैदा हुए, अल्लाह के घर में पैदा हुए और नबी की गोद में पले। उसी को शायर कहते हैं, नबी की गोद में पले, हरम की छांव के तले, वो जोश और वलवले के कांपते थे मरहले। बस खत्म। अरे तो बोलो सब सुभान अल्लाह। नबी की गोद, ये याद रखो, यही मौके है बोलने के। अगर अभी ना बोलोगे तो कब बोलोगे? मालूम है हर इंसान के साथ अल्लाह ने कई फरिश्ते लगाए। एक एक फरिश्ता नहीं है, कई फरिश्ते हैं। जब इंसान का आखिरी वक्त आता है, एक फरिश्ता हाँफता कांपता आता है और कहता है, ए बंदे, अल्लाह ने मुझे तेरे मशरूबात इकट्ठा करने के लिए मुकर्रर किया था। यानी जो तू पानी पीता था, चाय पीता था, शरबत पीता था, जो लिक्विड पदार्थ पीता था, उसका इंतजाम अल्लाह ने मेरे जिम्मे लगाया था। मैं उसे लेने जाता था, इकट्ठा करके तेरे पास आता था। आज तमाम रूए जमीन में गया, अफसोस तेरे नसीब का एक कतरा भी कहीं नहीं पाया। अभी ये आया दूसरा फरिश्ता भागता हुआ आता है, कहता है, अल्लाह ने मुझे तेरे रिज़्क़ मुहैया करने के लिए मुकर्रर किया था। जितना तू खाता था, जितना खाना खाता था, चावल खाता था, दाल खाता था, रोटी खाता था, इसका इंतजाम मैं करता था। अल्लाह ने मुझे तेरे लिए मुकर्रर किया था। आज तमाम रूए जमीन में गया, मगर तेरे नसीब का एक दाना भी दुनिया में नहीं है। फिर एक आता है, कहता है, अल्लाह ने तेरे लिए सांसों का इंतजाम करने के लिए मुकर्रर किया था। तमाम रूए जमीन में गया, मगर अफसोस तेरे नसीब में अब एक सांस भी बाकी नहीं है। उस वक्त बंदा कहता, ठहर जा, एक बार सुभान अल्लाह कहने दे। बस अब वक्त खत्म हो गया, अब टाइम नहीं है। अगर तूने पहले वक्त ना गवाया होता तो यकीनन तुझे ये मौका मिलता, मगर अब मौत का फरिश्ता खड़ा हुआ है, एक बार सुभान अल्लाह कहने की मोहलत ना मिलेगी। इसलिए यही वक्त है कि सुभान अल्लाह भी कह दो, माशाअल्लाह भी कह दो। जितना अल्लाह का जिक्र करोगे इंशाअल्लाह तुम्हारे मरातिब बुलंद होते चले जाएंगे। सुभान अल्लाह। फिर हदीस शरीफ में आता है कि जब बंदा एक बार सुभान अल्लाह कहता है,
ایک بار تو اللہ تعالیٰ اسے اتنی نیکیاں دیتا ہے زمین سے لے کر آسمان تک جتنی خالی جگہ ہے وہ سب اس کی نیکیوں سے بھر جاتا ہے. سبحان اللہ. اب سبحان اللہ بولیں گے کہ نہیں؟ سبحان اللہ. نبی کی گود میں پلے حرم کی چھاؤں کے تلے وہ جوش اور ولول کے کانپتے تھے مرحلے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. نبی کی گود میں پلے حرم کی چھاؤں کے تلے وہ جوش اور ولول کے کانپتے تھے مرحلے. اور وہ شیر حق جدھر چلے تو کفر میں تھے زلزلے مچا دی ایسی کھلبلی. علی 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 بلا ٹلی. ارے علی کا نام لے لو بلائیں ٹل جائے. علی 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 علی. اور یہ بندی ملاحظہ فرمائے حرم کے وہ گلاب ہیں کرم کے وہ صحاب ہیں شرف کے آفتاب ہے نجف کے ماہتاب ہے. جب علی اتنا سب کچھ ہے تو نبی کتنا کچھ ہوں گے. بے شک بے شک. حرم کے وہ گلاب ہیں کرم کے وہ صحاب ہیں شرف کے آفتاب ہے نجف کے ماہتاب ہے. اور علی کھلی کتاب ہے وہ رش کے صد شباب ہے. علی کھلی کتاب ہے وہ رش کے صد شباب ہے فدا ہے ان پہ ہر بلی. علی اللہ. سبحان اللہ. نعرے تکبیر. نعرے تکبیر. نعرے رسالت. نعرے رسالت. علماء اہل سنت. علماء اہل سنت. بڑے سے بڑا ولی ہو اگر علی والا نہیں ہے تو ولی نہیں ہو سکتا کیونکہ مصدر ولایت مولا علی ہے. اگر علی تک رسائی نہیں ہے تو کوئی ولی ہو ہی نہیں سکتا. اور مولا کائنات کی تاریخ اٹھاؤ کہ مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہے جو داماد پیغمبر ہیں نبی کی بیٹی کے شوہر. سبحان اللہ. نبی کی بیٹی کے شوہر اور جس کا انتخاب اللہ نے فرمایا. اس رشتے کا انتخاب اللہ نے پہلے ہی فرما دیا. مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہنشاہ کائنات کے شہنشاہ کائنات کے کون ہے؟ ہاں بولو یار اس میں شرم کی کیا بات ہے. یہ سمجھ لو ہم بھی تو آپ ہی جیسے ہیں. ہم پہلے یہاں رہ بھی چکے ہیں. سبحان اللہ. اگر جو پرانے لوگ ہیں وہ جانتے بھی ہوں گے کون ہے علی. نبی کے داماد اور نبی شہنشاہ کائنات. نبی مختار کل ہے مختار جنت ہے. نبی کے قبضہ و اختیار میں اللہ نے سب کچھ عطا فرما دیا ہے. اگر نبی چاہتے اپنی بیٹی کو کیا نہیں دے سکتے؟ بے شک بے شک. بولو نبی کیا نہیں دے سکتے؟ کیا خزانے میں کمی تھی؟ کوئی کمی نہیں. نبی چاہتے کچھ بھی دے سکتے تھے مگر نبی نے ایسی سادہ زندگی اختیار کی. اپنی بیٹی کے جہیز میں کیا دیا؟ آج ہم بھی اپنی بیٹیوں کی شادی کرتے ہیں. کبھی غور کیا کہ ہم تو عالی شان شادی کریں گے. ایک ہمارا غریب بھائی ہے وہ بھی اپنی بیٹی کی شادی کر رہا ہے. اس کے دل پہ کوئی صدمہ نہ بیٹھنا چاہیے. اسے کوئی صدمہ نہ ہو. وہ نبی کہ جس نے ہر موقع پہ غریبوں کا دل رکھنے کی بات کہی ہے. یہاں تک کہ نبی کا کردار یہ ہے کہ اگر تم اپنے گھر میں انار لے کے آؤ تو انار کے چھکلے چھپا کے پھینکو تاکہ تمہارا غریب پڑوسی اسے نہ دیکھنے پائے. اگر وہ دیکھے گا اس کے دل میں یہ خیال نہ ہے کہ یہ میرا پڑوسی انار کھاتا ہے
मुझे इतनी तौफीक नहीं, मेरे पास इतना पैसा नहीं कि मैं अनार खा सकूं। गोश्त ऐसे वक्त में बनाओ जब पड़ोसी के बच्चे सो जाएं, ताकि उसकी खुशबू पड़ोसी के घर में ना जाने पाए। तुम्हारे पास अल्लाह ने दिया है, हो सकता है तुम्हारे पड़ोसी के पास नहीं हो। अगर बच्चों ने जिद कर लिया कि अब्बा मुझे भी आज गोश्त खाना है, वो कहां से ला के देगा? ये है हमारे नबी का किरदार, इस पे अमल जरूरी है। और याद रखो, मुसलमान कभी भी कामिल नहीं हो सकता जब तक नबी का किरदार ना अपना ले। बेशक बेशक, नबी के किरदार पे अमल जरूरी है। बहरहाल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खजाने में क्या नहीं था? सब कुछ था, जो चाहते वो अता कर देते। मगर बेटी को देखो, दामाद को देखो, कई कई दिन के फाके होते हैं। एक ऐसा मौका आ जाता है कि मौलाए कायनात अली यानी नबी के दामाद 3 दिन के फाके से हैं। कितने दिन के फाके से? अभी मौलाना साहब से ने बताया था कि ये यूपी वाले हैं, ये खुद भी बोलते हैं और बुलवाते भी हैं। 3 दिन के फाके से है। फाका किसे कहते हैं? जो एक दिन में 5 मरतबा खाना खाए उसे फाका कहते हैं ना। हाँ, माशाअल्लाह समझदार हम। यही तो देखना चाहते हैं, जो मैं बताना चाह रहा हूं वो बिल्कुल दिमाग के अंदर आना चाहिए। फाका वो है कि खाना रखा है घर में, मगर हम खाए ना, उसे फाका कहा जाएगा? उसे भी नहीं कहा जाएगा। ये तो आप अपने ऊपर जुल्म कर रहे हैं कि खाना रखा हुआ उसके बाद नहीं खा रहे। फाका वो है कि घर में कुछ है ही नहीं, हम तो चाहते हैं कि मिल जाए खा ले, मगर उस वक्त हमारे पास खाना मुहैया नहीं है। कोई ऐसे हालात भी नहीं है कि खाना आए। यही हाल मौला कायनात का है। 3 दिन के फाके से मौला अली है। दुश्मन इस्लाम अबू जहल को पता चल गया कि अली 3 दिन के फाके से है। नबी का दामाद 3 दिन के फाके से है। हसन हुसैन के बाप 3 दिन के फाके से है। जैसे ही ये खबर लगी, सोचने लगा कि ये अली का घराना है, ये नबी का घराना है, बड़ा मशहूर घराना है कि जो मांगने वाला आता है, जितना मांगता है उससे ज्यादा पाता है। सुभान अल्लाह, ये नबी का घराना है, अली का घराना है। जो भी आता है खाली नहीं जाता, जो भी आता है महरूम नहीं जाता। उसे मालूम हो गया अली 3 दिन के फाके से है। सोचने लगा अगर ऐसे मौके में कोई मांगने वाला आ जाए, साइल आ जाए, तो बड़ा मजा आ जाए। समझ रहे ना? इस्लाम का दुश्मन था। सोचने लगा अगर ऐसे मौके में मांगने वाला आ जाए, सीधा उसको अली के घर का पता बताएंगे। जब अली के घर में खुद खाने को नहीं है, खुद खाने को नहीं है, तो अली के घर से वो कुछ लेके तो आएगा नहीं, खाली हाथ आएगा। उस वक्त हम मजाक उड़ाएंगे कि देखो ये नबी के दामाद के घर से खाली आ गया है, इसे नवाजा नहीं गया है, ये मायूस लौट आया है। यही सोच रहा था। और कभी कभी ऐसा होता भी है कि बंदा को सोचता है, उसकी मुराद पूरी भी हो जाती है। होता है कि नहीं? उलमा फरमाते हैं हर इंसान की दिन भर में एक दुआ कबूल होती है। सुभान अल्लाह, हर इंसान की दिन भर में एक दुआ कबूल होती है। एक साहब ने मौलाना साहब से सुन लिया कि मौलाना साहब ने बयान किया कि दिन भर में एक दुआ कबूल होती है। उसने कहा यार चलो इसे आजमा के देखा जाए। गया जंगल में जाके बैठ गया, एक ईंटा रख लिया और उस ईंटे के पास कहने लगा ए अल्लाह इसे सोना बना दे, ए अल्लाह इसे सोना बना दे। काम करेंगे नहीं, मेहनत करेंगे नहीं, बस बैठ गया कि अल्लाह इसे सोना बना दे, सोना बना दे। सुबह से हो गई शाम, यहाँ तक कि यही रट लगाए रहा, कोई दुआ न मांगी, न कुछ खाया न पिया, बस लगा है ए अल्लाह इसे सोना बना दे, ए अल्लाह इसे सोना बना दे। असर हो गई, जोहर हो गई, यहाँ तक के मगरिब का वक्त जैसे ही करीब आया, अब इसको भी गुस्सा आ गया। सुबह से मैं चिल्ला रहा हूँ कि सोना बना दे, सोना बना दे। अरे अल्लाह सोना नहीं बनाए तो लोहा ही बना दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो कहा लोहा बना दे, लोहा बना दे। अब बेचारा कुड़मुड़ा रहा, यार एक बार और कह दिया होता। दिन भर में एक दुआ कबूल होती है। यहाँ अबू जहल भी लगा था। अल्लाह से अच्छी तवक्को रखना चाहिए। कभी पहले से ये नहीं सोचना चाहिए कहीं ऐसा ना हो जाए कि मेरा पैर ना खराब हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए कि मैं गिर ना जाऊं, कहीं ऐसा ना हो जाए कि आज खाना ना मिले। ये तवक्को नहीं रखना चाहिए। जैसी अल्लाह से तवक्को रखोगे वैसे ही अल्लाह को पाओगे। इसलिए बेहतर अच्छी तवक्को रखो। यही सोचो कि अल्लाह हमें भूखा नहीं रखेगा, अल्लाह हमें प्यासा नहीं रखेगा, अल्लाह हमें उरूज अता करेगा, अल्लाह हमें ईमान वाला रब बनाएगा, अल्लाह ईमान की जिंदगी अता करेगा, अल्लाह ईमान पे खात्मा बिल खैर करेगा। जैसे अच्छे तवक्कुआत अल्लाह से रखोगे अल्लाह को वैसे ही पाओ।
بے شک اس لیے اچھے اچھے توقعات رکھو. بہرحال دن بھر میں ایک دعا قبول ہوتی ہے. ابو جہل بھی یہاں کہنے لگا ایسے میں کوئی سائل آ جائے بڑا مزہ آ جائے. جیسے ہی اتنا کہا پیچھے سے آواز آئی اے سردار مکہ گھر میں بیٹی کی شادی ہے ہماری کچھ مدد ہو جائے. جیسے ہی اس نے پلٹ کے دیکھا کہنے لگے بڑے اچھے وقت پہ آئے. کہنے لگا بڑے اچھے وقت پہ آؤ. کہا لائیے پھر جلدی. کہا میں تھوڑی دوں گا. کہا پھر؟ کہا نام بتاؤں گا پتہ بتاؤں گا ایڈریس لکھاؤں گا وہاں چلے جانا جتنا مانگو گے اس سے زیادہ پاؤ گے. سبحان اللہ. بولو صحیح کہہ رہا تھا کہ غلط؟ بے شک صحیح کہہ رہا تھا لیکن حسد کی بنیاد پہ کہہ رہا تھا جلن کی بنیاد پہ کہہ رہا تھا. کہنے لگا جتنا مانگو گے اس سے زیادہ پاؤ گے. کہا ٹھیک ہے جلدی سے نام بتائیے پتہ بتائیے ایڈریس لکھائیے. اس نے نام پتہ بتایا. کہا جاؤ وہاں چلے جاؤ وہاں جا کے دستے سوال پھیلانا جیسے ہی تم مانگو گے جتنا مانگو گے اس سے زیادہ پاؤ گے. یہاں سے سائل چلا ادھر ابو جہل نے بلانا شروع کیا عتبہ تم بھی آؤ شیبہ تم بھی آؤ فلانے تم بھی آؤ ٹھکانے تم بھی آؤ. جتنے دشمن اسلام تھے کفار تھے ان سب کو اکٹھا کر لیا. جان رہا تھا علی کے دروازے سے سائل خالی ہاتھ آئے گا. سب کو اکٹھا کر لیا. جب سائل آئے گا تب ہم مذاق اڑائیں گے کہ دیکھو نبی کے داماد کے گھر سے سائل خالی آ گیا. یہاں اس کا نظریہ یہ تھا یہ نظریہ تھا. اب وہاں جانے والا گیا اور جا کے علی کے دروازے میں دستک دی. جیسے ہی دستک دی مولا کائنات باہر تشریف لائے. یہ ضروری تو نہیں ہے کہ آنے والا اندر سے آئے تو کچھ لے کے آئے. بے شک ضروری ہے یہ کہ لے کے آئے. مولا علی کرتا پہنے ہوئے باہر تشریف لے آئے. جیسے ہی علی کا چہرہ دیکھا بس لگا دعائیں دینے میں. اے علی تم سلامت رہو تمہارے بچے سلامت رہے تمہارا کاروبار سلامت رہے تمہاری زمین و جائیداد سلامت رہے. اے عرب کے سب سے بڑے امیر. سبحان اللہ. جب تک دعا دیتا رہا مولا علی سنتے رہے اور جیسے ہی اس نے کہا اے عرب کے سب سے بڑے امیر کا ٹھہر جا ٹھہر جا پہلے مجھے یہ بتا تجھے یہ کس نے بتایا ہے میں عرب کا سب سے بڑا امیر ہوں. اب وہ سوچ میں پڑ گیا کہنے لگا سرکار جس نے مجھے یہ بتایا ہے کہ عرب کے آپ سب سے بڑے امیر ہیں اس نے نام بتانے کے لیے منع کیا ہے. مولا کائنات نے مسکرا کے فرمایا تو سن لے جب تک نہیں بتائے گا اس کا نام تب تک نہیں بنے گا تیرا کام. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اب وہ بیچارہ سوچ میں پڑ گیا نام نہیں بتاتا تو کام نہیں بنتا. دائیں دیکھا بائیں دیکھا آگے دیکھا پیچھے دیکھا. سوچا ابو جہل دیکھ تھوڑی رہا ہے. سوچا ابو جہل اچھا یہ عادت معلوم ہے کس کی ہے یہ نام نہیں بتانا. یہ عادت کس کی بتائیے دیکھیں آپ کو کتنا معلوم ہے. ارے یار عورتوں کی یہ عادت عورتوں کی. آپ اپنے کوئی راز کی بات بتا دیجئے اپنی بیوی کو. دیکھو میں تمہیں بتا رہا ہوں کسی سے کہنا نہیں. اب وہ فوراً پڑوسن کو بلائے گی ایسا ہوا تم کسی سے کہنا نہیں. وہ تیسرے سے کہے گی تم کسی سے کہنا نہیں. پورے محلے بھر میں بات پھیل جائے گی رہے گا یہی کہ کسی سے کہنا نہیں. یہ عورتوں والی فطرت ہے اور اسے غیبت میں بھی شمار کیا جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میں نے معراج میں زیادہ تر عورتوں کو جہنم میں دیکھا. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ عورتوں کا ایسا کون سا عمل ہے جس کی وجہ سے زیادہ تر جہنم میں عورت پائی گئی. نبی نے فرمایا غیبت چغلی غیبت یہ عورتوں کی سب سے بڑی بیماری ہے. وہ بات کہو جو منہ کے سامنے کہنے کی طاقت ہے اور جو سامنے نہیں کہہ سکتے اسے پیٹ پیچھے کسی کے سامنے مت کہو. یہی غیبت ہے. دیکھا دائیں بائیں دیکھا اس نے سوچا ابو جہل دیکھ تھوڑی راہ بتا دیا. کہ ابو جہل نے بھیجا. اچھا ابو جہل نے بھیجا ہے تو سن میں تجھے ضرور دوں گا اور اتنا دوں گا کہ تیری حاجت بھی پوری ہو جائے گی تیری عادت بھی پوری ہو جائے گی. سبحان اللہ. کہنے لگا حضور پھر جلدی اندر جائیے. مولا کائنات نے ارشاد فرمایا اندر کیوں جاؤں. کہنے لگا جب اندر جائیں گے تبھی تو کچھ باہر لائیں گے. علی نے فرمایا میں علی ہوں. علی مجھے اندر باہر آنے جانے کی ضرورت نہیں ہے. جو دینا ہوگا علی یہی کھڑے کھڑے عطا کر دے گا.
हाथ फैला दिए, कहा हुजूर फिर अता कीजिए, हुजूर फिर अता कीजिए। मौला कायनात ने फरमाया देख जो मैं अता करूंगा, जो मैं तुझे दूंगा वो तुझे अभी दिखेगा नहीं, न तू देखना न रास्ते में किसी को दिखाना, जिसने तुझे मेरे पास भेजा है सबसे पहले उसी को दिखाना। कहा हुजूर अता कीजिए। फरमाया दिखेगा नहीं, मैं खाली छू करूंगा, तू मुट्ठी बंद कर लेना। छू जानते हैं कि नहीं? अरे आजकल छू भी बहुत महंगी हो गई है। का छू, एक छू की बात है। अब मौलाए कायनात के लब से लब हिले, कुछ पढ़ने लगे। पढ़ने के बाद मौलाए कायनात रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उसके हाथों में छू कर दिया, कहा मुट्ठी बंद कर ले। इसने मुट्ठी बंद कर लिया। यहाँ से कहा चले जाओ, न तुम देखना न रास्ते में किसी को दिखाना, जिसने तुम्हें मेरे पास भेजा है सबसे पहले उसी को दिखाना। यहाँ से ये चला, इधर न अली ने हाथ उठा दिए। ए परवरदिगार, अली को इज़हारे करामत दिखाने का शौक नहीं है, मगर ये परवरदिगार तेरे हबीब के घर की इज्जत और आबरू का सवाल है। अगर ये साइल खाली चला जाएगा तो तेरे नबी का घराना बदनाम हो जाएगा। ये परवरदिगार दरूद पाक तेरे हबीब पर पढ़ना मेरा काम था और अली की इज्जत और आबरू बचाना तेरा काम। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत। मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने 10 बार दरूद पाक पढ़ा, नबी की बारगाह में इस्तिगासा पेश किया, अल्लाह की बारगाह में इल्तिजा कर ली। बाबे इजाबत की जंजीरों को अली की दुआ ने हिला दिया। अब यहाँ से वो साइल जा रहा है, मगर रास्ते पर सोच रहा है, उसे तो मालूम है कि खाली छू ही तो है इसके अंदर, दिखाऊंगा क्या। रास्ते पर मुट्ठियां रगड़ता जा रहा है, कुछ आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया। जैसे ही करीब पहुंचने लगा, अचानक महसूस हुआ कि मुट्ठी के अंदर कुछ है। अब उसे तसल्ली हो गई, कुछ तो है। अब वहीं से अबू जहल ने दूर से देखा, एक मजमा लगाए हुए हैं, वहीं से चिल्लाया, ए साहिल कुछ मिला? कहाँ मिला? पूछा क्या मिला? कहा मुझे भी नहीं मालूम क्या मिला। अब अबू जहल भी परेशान हो गया, ऐसे मिल क्या गया है कि जो बताना नहीं चाह रहा। का खोल के देखता क्यों नहीं? का देखने की इजाजत नहीं है, सबसे पहले तुझे को दिखाने की इजाजत है। अब उसने भी सोचा कि चलो आने दो। जैसे ही करीब आया, कहने लगा मुट्ठी खोलो, क्या है मुट्ठी के अंदर। और जब ऐसा मामला होता है तजस्सुस बढ़ जाता है, जुस्तजू बढ़ जाती है। अब वो मुट्ठी खोल नहीं रहा, पहले सब लोग नजर जमाओ। सारे लोगों की नजरें जब जम गई, तब कहा मुट्ठी खोलो। मुट्ठी खोली, अबू जहल की आंखें खीरा हो गई, हैरानी के आलम में पूछने लगा, ए शख्स तुझे ये अली ने दिया है? कहा हाँ अली ने दिया है। कहा कहां से लाके दिया है? जमीन से लाके दिया है, मकान से लाके दिया है, जमीन से लाके दिया है, जायदाद से लाके दिया है, मकान से लाके दिया है, दुकान से लाके दिया है, खेत से लाके दिया है, या खलियान से लाके दिया है। कहने वाला पुकार उठा कि सुनो, जहां तक मेरी नजर का सवाल है, न खेत से लाके दिया है, न खलियान से लाके दिया है, न जमीन से लाके दिया है, न मकान से लाके दिया है, न दुकान से लाके दिया है, बल्कि खुदा की कसम ये मोती मुझे अली ने अपनी जबान से अता किया। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, मसलके आला हज़रत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत। मुअर्रिख फरमाते हैं कि इतना नायाब मोती था कि अबू जहल ने अपनी लाइफ में बड़े बड़े खजाने देखे थे, मगर ऐसा खजाना नहीं, ऐसा मोती नहीं देखा था। हैरान रह गया। अब बताओ, जब अली के छू का ये आलम है, अली के छू का ये आलम है, तो अली के लहू का आलम क्या होगा, सुभान अल्लाह, जो गौसे आजम की रगों में दौड़ रहा है, वलियों के ताजदार की रगों में दौड़ रहा है। सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से जो मोहब्बत करने वाला होगा, वो अली से भी मोहब्बत करने वाला होगा, और जिसे अली से मोहब्बत है वो नबी का चाहने वाला होगा, वही तो साहिब ईमान है। अल्लाह ने खुद कुरान पाक में इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह व कूनू मअस-सादिकीन। सुभान अल्लाह। यहाँ अगर आप लोग कहें तो मैं अपना उन्वान बदल दूं। मैंने जो आयत पढ़ी है,
अब उस आयत पे मैं नहीं जा रहा क्योंकि वहां जाना अभी मजमून बहुत ज्यादा फैल जाएगा, वक्त नहीं है। वकूनु मा सादिकीन फरमाया, अल्लाह ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ऐ ईमान वालों। अब जब ईमान वालों की सब में आप किसी को शुमार करेंगे, पूछेंगे कौन कौन ईमान वाला है, हर कोई सामने खड़ा हो जाएगा कि हम भी ईमान वाले हैं, हम भी ईमान वाले हैं। यहाँ तक के जो काफिर है, काफिर वो भी कहेगा मैं ईमान वाला, क्योंकि उन्होंने ईमान का मेयार समझा नहीं है, ईमान का मतलब समझा नहीं है। ईमान का मतलब लोग यही जानते हैं कि 1000 का नोट पड़ा हुआ है जमीन में और दूसरा शख्स आए, उसने देखा फला का गिरा, उठा के दे दिया, भैया तुम्हारा नोट है, तो लोग कहते हैं ये ईमानदार। ईमान का मेयार ये समझा गया है, जबकि ईमान का मेयार कुछ और है। जिससे भी आप सवाल करेंगे ईमान वाले हो, हर कोई कहेगा ईमान वाला हूँ। अब अल्लाह की बारगाह में सवाल किया, ए परवरदिगार, यहाँ तो हर फिरका अपने आप को ईमान वाला कह रहा है, हर मजहब वाला अपने आप को ईमान वाला कह रहा है। अल्लाह ने इरशाद फरमाया और आगे चलो, इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरने वाला कौन है। अब जिससे जिससे पूछा गया अल्लाह से कौन डरता है, हर कोई पुकार उठा, हम अल्लाह से डरते हैं, हम अल्लाह से डरते हैं। मुसलमान बोला हम अल्लाह से डरते हैं, काफिर बोला हम अल्लाह से डरते हैं। एक ऐसी जात है जिसके कब्जे में हमारी जाने हैं, हमें मरना है, मर के हमें जाना है, स्वर्ग और नरक का साबका पढ़ना है, हर कोई मानने को तैयार है। सब एक अल्लाह से डरने वाले हैं, एक ईश्वर से डरने वाले हैं कि यकीनन उसके कब्जे में मेरी जान है, हमें मर के जाना है, उसे मुंह दिखाना है। हर किसी ने आवाज लगाई हम अल्लाह से डरने वाले हैं, हम अल्लाह से डरने वाले हैं। अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया, ए परवरदिगार, यहाँ सब अपने आप को ईमान वाला कह रहे हैं, सब अपने आप को अल्लाह से डरने वाला कह रहे हैं। रब ने इरशाद फरमाया और आगे देखो कि मैंने किससे खिताब किया है, किसे ईमान वाला कहा है, जिसके हाथों में अल्लाह के प्यारों का दामन है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वकूनु मस्सादिकीन, जिसके हाथों में सच्चों का दामन है। अच्छा चलो अब सच्चों को ढूंढा जाए। झूठे से कहा तुम सच्चे हो, बोला हाँ मैं भी सच्चा हूं। कोई झूठा कहेगा कि मैं झूठा हूं, बोलो। हर कोई कहने लगा सच्चा हूं सच्चा हूं, मगर दिल को तसल्ली नहीं हुई। अब तारीख के और आंख उलट के देखे तो बगदाद के अंदर एक बच्चा नजर आया। उस बच्चे को देखकर समझ में आ गया यही सच्चा है। और जब जब ये सच्चा है तो जितने इसके चाहने वाले हैं, जितने मानने वाले हैं, जो इसके बाद वाले हैं, जो इसके पहले वाले हैं, सब सच्चे नजर आएंगे। जहां जान पे बनाए 40 लोगों ने, डाकुओं ने घेर लिया है। डाकुओं के नरगे में एक नन्हा बच्चा मौजूद है। उस बच्चे से सवाल किया, ए बेटा बता तेरे पास क्या है। हर कोई अपने माल को छिपा रहा है। उस बच्चे ने कहा बेसाख्ता बुखार उठा, मेरे पास 40 अशरफियां हैं। सुभान अल्लाह। सुना है कि नहीं? आप लोगों ने सुना है कि नहीं? वो बगदाद के अंदर बच्चा नजर आया, सच्चा बच्चा के नाम से नजर आया। पूछा क्या है, 40 अशरफियां हैं। लोगों ने टटोलना शुरू किया, कहां है, कहां है? नहीं मिली, किसी को नहीं मिली। क्यों नहीं मिली? ये गौसे आजम की करामत ही तो थी। है पास में, बता रहे हैं मगर कोई ढूंढ नहीं पा रहा। आखिरकार सरदार आया, कहने लगा ये बेटा तू ही बता दे तेरे पास अशरफियां हैं तो कहां है। गौसे आजम ने सदरी उतारी, अस्तर फाड़ा, सामने रख दिया। वो नन्हा बच्चा कौन है? वही तो सरकारे गौसे आजम है, वही वलियों के ताजदार है। खुद सरकारे गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इरशाद फरमाते, जैसे ही मैंने उसके सामने अशरफियां रखी हैरान रह गया। कहने लगा ए बेटा हर कोई चाहता है कि उसका माल बच जाए, सब अपने अपने माल को छिपाते हैं। अगर तुम चाहते हम तुम्हारे माल को ढूंढ नहीं पाते, तुम्हारी अशरफियों का पता न लगता, तुम चाहते छिपा सकते थे। तुमने झूठ क्यों ना बोल दिया कि मेरे पास कुछ नहीं है, क्योंकि हम ढूंढने में कासिर थे। तुम बता सकते थे कि मेरे पास नहीं है। गौसे आजम ने फरमाया मैं कैसे ये बात कह सकता था। जब मैं घर से निकल रहा था तब मेरी माँ ने कहा था, ए अब्दुल कादिर अगर जान जाती है चली जाए, खबरदार खबरदार तुम्हारे होठों में कभी झूठ नहीं आना चाहिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो सरदार मुंह खुला का खुला रह गया, हैरत से देखने लगा। अल्लाहु अकबर, ये नन्हा सा बच्चा अपनी पैदा करने वाली माँ का इतना फरमा बरदार,
کہ ماں نے کہہ دیا کہ جھوٹ نہ بولنا، جان جاتی ہے چلی جائے، سارا مال قربان کر دیا۔ اپنے ساتھیوں سے کہنے لگا دیکھو اس ننھے سے بچے نے اپنی ماں کی بات کو کتنا سراہا ہے کہ اس نے پیدا کرنے والی ماں کے حکم کی خاطر اپنا سارا مال نکال کر دے دیا۔ افسوس ہے ہماری زندگی پر کہ جس خالق کائنات نے ہم کو پیدا کیا ہے، جس رب قدیر نے ہمیں رزق مہیا کیا ہے، افسوس ہم اس کا کہنا نہیں مانتے۔ اسی تاریخ سے سب نے توبہ کی، غوث اعظم کے قدموں کو پکڑ لیا۔ اے بیٹا تم نے ہمارے دلوں کو کھول دیا ہے، کم سے کم تم کوئی معمولی ہستی نہیں، یقیناً اللہ نے تمہیں منصب ولایت پر فائز کیا ہے، ہم سب کو توبہ کراؤ۔ غوث اعظم فرماتے ہیں وہ پہلے لوگ تھے جنہیں میں نے راہ حق پہ گامزن کیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ فرماتے ہیں اس عمر میں سرکار غوث اعظم نے سب کو توبہ کرائی، وہ نظر ڈالی کہ سب کو اپنے وقت کا ولی کامل بنا دیا۔ سبحان اللہ۔ دنیا میں ولی ایک سے گزرے، لیکن جو مرتبہ اللہ نے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا وہ مرتبہ کسی ولی کو نہیں ہے، وہ مرتبہ کسی ولی کو نہیں ہے۔ بچپنا غوث اعظم کا بے مثال، یہاں تک کہ پیدائش بے مثال۔ آج ہمارے معاشرے کا حال بہت بگڑ چکا ہے، خواہ مرد ہوں یا عورتیں ہوں، سب کا یہی حال ہے۔ مگر آؤ تاریخ اٹھا کے دیکھو، سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پیدا ہوئے مدرسے میں داخل کرایا گیا، مکتب میں داخل کرایا گیا۔ غوث پاک کی عمر پاک 4 سال 4 مہینہ 4 دن کی ہے۔ اگر آپ اپنے بچے کا داخلہ دینی تعلیم میں اس عمر میں کرائیں گے تو غوث اعظم کی سنت پہ عمل ہوگا۔ کتنے سال کے تھے غوث اعظم؟ 4 سال 4 مہینہ 4 دن کے۔ غوث اعظم کو داخل کیا گیا مدرسے میں، مولوی صاحب نے پڑھانا شروع کیا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غوث اعظم نے پڑھا، اس کے بعد پڑھایا الف بے، یا جدید طور پہ کہہ لو الف با تا سا، بہرحال ہم آپ کو پرانی لینگویج ہی بتاتے ہیں۔ الف بے تے سے پڑھاتے ہوئے یہ تک پہنچ گئے، یہ تک پہنچ گئے۔ اور اس کے بعد فرمایا پڑھو الف زبر آ بے زبر با، کہ نہیں مولوی صاحب یہ کہ آگے بتائیے کیا ہے۔ غوث اعظم استاد سے کہنے لگے مولوی صاحب یہ کہ آگے بتائیے، کہ یہ کہ آگے یہی تو ہوتا ہے الف زبر آ بے زبر با، کہ نہیں یہ تو وہی ہے، خالی زبر لگایا ہے آپ نے، یہ کہ آگے بتائیے کیا ہے۔ اب مولوی صاحب بھی پریشان ہو گئے، کہنے لگے جس کو بھی پڑھایا ہے یہی پڑھایا ہے، میں نے پڑھا ہے، میں نے بھی یہی پڑھا ہے، تم پہلے ہو جو کہہ رہے ہو یہ کہ آگے کیا ہے۔ الف زبر آ بے زبر با ہوتا کہ نہیں مولوی صاحب یہ کہ آگے بتائیے، یہ تو خالی زبر لگایا جا رہا، تھوڑی دیر میں آپ پیش لگا دیں گے پھر زیر لگا دیں گے، لیکن الفاظ تو وہی ہوں گے، یہ کہ آگے بتائیے کیا ہے۔ اب غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب بار بار اصرار کیا، مولوی صاحب کہنے لگے بیٹا مجھے نہیں معلوم، اگر تمہیں معلوم ہو تو تم بتاؤ۔ بیٹا اگر تمہیں معلوم ہو تم بتاؤ۔ غوث اعظم نے کہا حضور خطا معاف ہو تو بتاؤ کہاں معاف ہے۔ مورخ فرماتے غوث اعظم نے اپنے استاد کے سر پہ ہاتھ رکھا۔ کتنے سال کی عمر تھی؟ 4 سال 4 مہینے 4 دن کی عمر۔ غوث اعظم نے اپنے استاد کے سر پہ ہاتھ رکھا اور اس کے بعد کہا کہ حضور دیکھیں یہ کہ آگے یہ ہے۔ تو مورخ فرماتے ہیں، استاد فرماتے ہیں کہ جب میں نے سر اٹھا کے دیکھا تو میرے سر سے لے کر آسمان تک نور ہی نور جگمگا رہا تھا، اور غوث اعظم کہہ رہے تھے استاد دیکھیے یہ کہ آگے یہ۔ اس عمر میں اللہ نے اتنا نوازا تھا۔ غوث اعظم ماں کے پیٹ سے ولی پیدا ہوئے۔ اب استاد محترم نے جب یہ منظر دیکھا کہنے لگے بیٹا اب تمہیں جو کچھ بھی آتا ہے تم خود سناؤ۔ اب غوث اعظم نے پڑھنا شروع کیا، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اب الف لام میم شروع ہو گیا، سیقول شروع ہو گیا، 1 سپارہ 2 سپارہ 3 سپارہ بغیر دیکھے 17 پارے سنا دیا، بغیر دیکھے 17 پارے سنائے۔ استاد سورت دیکھتے رہے،
کہنے لگے میرے لال، اے میرے پیارے، تمہاری ماں نے داخلہ کرایا الف ب پڑھانے کے لیے، مگر تم نے تو 17 پارے سنا دیے۔ اے بیٹا یہ تو بتاؤ یہ 17 پارے تم نے کہاں حفظ کیے، کس مدرسے میں حفظ کیے؟ غوث اعظم کہنے لگے استاد میں نے کسی مدرسے میں قدم نہیں رکھا، بلکہ ماں کے پیٹ میں تھا۔ جب میں ماں کے پیٹ میں تھا میری ماں تلاوت کرتی تھی، ماں نے 17 پارے پڑھے تھے جو میں نے یاد کر لیے۔ اگر ماں نے پورا قرآن پڑھا ہوتا تو میں پورا حافظ قرآن پیدا ہوتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ اکبر، کیا مرتبہ ہے غوث اعظم کا، کوئی کیا جانے۔ اور آج ہمارے گھر کا عالم یہ ہے، ماں کے پیٹ میں بچہ ہے، ماں گانے میں لگی ہے، گانا گا رہی ہے۔ اب بتا جب بچہ پیدا ہوگا تو ڈانسر پیدا ہوگا کہ نہیں؟ معلوم ہے سائنسی نقطۂ نظر سے دیکھا گیا، جب یہ غوث اعظم کا واقعہ سامنے آیا تو لوگوں نے اس پر ریسرچ کی، کیا واقعی ایسا ہوتا ہے کہ بچہ ماں کے پیٹ میں ہو تو ماں کے گزرے ہوئے حالات کا اثر بچے پہ آتا ہے؟ تو ولادت کے 15 دن پہلے ماں کے ہاتھوں میں مہندی لگائی، ولادت کے بچے کی ولادت کے 15 دن پہلے ماں کے ہاتھوں میں اور پیروں میں مہندی لگائی گئی ریسرچ کے طور پہ۔ اور جب 15 دن کے بعد بچہ ہوا تو معلوم ہوا بچے کے ہاتھ اور پیر میں مہندی لگی ہوئی۔ سبحان اللہ۔ اس سے پتا چلا کہ جب ماں کے پیٹ میں بچہ ہوتا ہے تو جو ماں کرتی ہے وہ اثر بچے پہ آتا ہے۔ بے شک۔ اس لیے ہماری ماں بہنوں کو چاہیے کہ جس وقت وہ حاملہ ہو تو اس بات کا خیال رکھے جتنا ہو سکے اللہ اللہ کرے، درود پاک پڑھے، تاکہ بچہ پیدا ہو تو عاشق نبی ہو، سبحان اللہ۔ بچہ پیدا ہو تو عاشق علی ہو، بچہ پیدا ہو تو عاشق غوث اعظم ہو۔ یہ تبھی ہوگا جب ہمارے معاشرے میں سدھار ہوگا۔ اور یہ مہندی کا حکم خالی عورتوں کے لیے ہے؟ آج ہمارے معاشرے کا حال یہ، شادی ہو رہی صاحب ہاتھوں میں مہندی لگا کے پہنچ گئے، کون؟ مرد۔ تمہارے لیے حرام ہے، سخت حرام۔ اس کے باوجود حرام کر رہے ہو۔ سنت کا معاملہ آیا، شادی کیوں کر؟ سنت ہے، شادی اس لیے کر رہا، سنت ہے۔ تمہیں سنت دکھ رہی ہے؟ سنت ہے۔ نماز چھوٹ رہی، فرض چھوٹ رہا، اس کا خیال نہیں ہے؟ یہ بھی ضروری ہے۔ سب کچھ تمہارا کامیاب تب ہوگا جب تم نمازی ہو جاؤ، بے شک۔ خواہ وہ مرد ہو چاہے عورت ہو۔ سب سے سوال ہوگا، اگر عورتیں یہ سوچ رہی ہیں کہ ہمارا شوہر تو نماز پڑھ رہا مجھے کیا ضرورت ہے، تو شوہر کو اپنی قبر میں سونا ہے، تمہیں اپنی قبر میں سونا ہے۔ وہاں شوہر بچانے نہیں آئے گا، یا بیوی بچانے نہیں آئے گی اپنے شوہر کو۔ قبر کی وہ تاریک کوٹھی ہے جہاں تمہارے عمل ہی ساتھ آئیں گے۔ اگر نمازی ہو تو نماز ساتھ میں آئے گی۔ حدیث شریف میں آتا ہے جب بندہ قبر میں جائے گا، اگر گنہگار ہے ایک سیاہ بھیانک صورت آئے گی ایک دم قبر میں۔ ایک تو اندھیرا ہے، قبر کی دہشت ہے، کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہے۔ جیسے ہی وہ بھیانک صورت سامنے آئے گی بندہ ٹھٹک جائے گا، یہ کون آ گیا؟ پوچھے گا تو کون ہے؟ ایسے عالم میں میرے سامنے مجھے ڈرانے کیوں آیا ہے؟ وہ صورت جواب دے گی تم نے مجھے نہیں پہچانا، جب دنیا میں نیک لوگوں نے مجھے چھوڑ دیا تھا تم نے مجھے کلیجے سے لگایا تھا، میں وہ تمہارا جھوٹ ہوں۔ دوسری بھیانک صورت آئے گی، تم کون ہو؟ بھول گئے جب اچھے لوگوں نے ساتھ چھوڑ دیا تھا، تم نے مجھے اپنایا تھا، میں وہ تمہاری بدکاری ہوں، وہ تمہاری عیاری ہوں۔ قبر میں دہشت ہی دہشت آ جائے گی۔ اس کے بعد قبر پھاڑتے ہوئے فرشتے آئیں گے، سوال کریں گے من ربو کا۔ پہلے ہی خوف سے کانپ رہا ہوگا، کہے گا ہاں لا ادری، افسوس ہم نہیں جانتے، افسوس ہم نہیں جانتے۔ اللہ فرمائے گا یہ جھوٹا ہے، کذاب ہے، اس کے لیے جہنم کی کھڑکیاں کھول دو۔ اور جب بندہ نیک ہوگا، نیک بندہ جیسے ہی قبر میں جائے گا ایک نورانی صورت سامنے آ جائے گی، بندہ پوچھے گا تو کون ہے؟ جب میرے بھائی نے ساتھ چھوڑ دیا، بہنوں نے ساتھ چھوڑ دیا، رشتہ داروں نے مجھے ترک کر دیا، ماں باپ نے فراموش کر دیا، اس قبر میں کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہے، ایسے موقع میں میری مدد کرنے تم آئے ہو کون؟ وہ نورانی صورت کہے گی نہیں پہچانا، تم نے دنیا میں جو نماز پڑھی تھی میں وہ تمہاری نماز۔ دوسری
दूसरा चेहरा सामने आएगा, तुम कौन? कहेगा मैं कुरान की तिलावत हूँ। सुभान अल्लाह। तुम कौन? मैं तुम्हारी सच्चाई हूँ। तुम कौन? मैं तुम्हारी अमानतदारी हूँ। एक से एक नेकियां सामने आ जाएंगी। अब फरिश्ते सवाल करेंगे, मन रब्बुका, तुम्हारा रब कौन है? बंदा जवाब दे देगा, डर काहे का है, अब खौफ काहे का है, अकेला थोड़ी है, उसके अमाल उसके सामने मौजूद है, कब्र मुनव्वर है। फिर सवाल किया जाएगा। अल्लाह जब वो सारे सवालों के जवाब दे देगा, अल्लाह फरमाएगा मेरा बंदा सच कहता है, जन्नत की खिड़कियां खोल, जन्नत की खिड़कियां खोल दी जाए। इसलिए मेरे भाई, ये दुनिया जाए अमल है, सब कुछ करो लेकिन नमाज को न छोड़ो। कयामत के दिन पहला सवाल होगा, पहला सवाल, नमाज पूरी है या नहीं। पहला सवाल क्या होगा? पूरी तवज्जो यहां रखिए, थोड़ी देर की बात है, बस 15 मिनट में तकरीर खत्म। दिल में बहुत कुछ था लेकिन अफसोस कि मैं बयान नहीं कर सकता, टाइम नहीं इतना। कयामत के दिन पहला सवाल क्या है? बोलो, सब लोग मिलके बोलो। ये आप लोगों से इसलिए बुलाया ताकि कयामत में ये ना कहो कि हमें मालूम नहीं है। हम कह देंगे हाँ हमने कहलाया था इनको सबको। पहला सवाल, नमाज पूरी है कि नहीं। और उस वक्त बंदा कहता, ए अल्लाह हम गौस पाक की न्याज करता था। सवाल ये किया जा रहा है तुझसे कि नमाज पूरी है कि नहीं। हम गरीब नवाज के उर्स में जाते, ये कौन पूछ रहा तुझसे? गरीब नवाज के उर्स में जाते। इसका मतलब ये ना समझना कि गौस हमारे काम नहीं आएंगे, ख्वाजा काम नहीं आएंगे, सब काम आएंगे। मगर कब काम आएंगे? अगर एक दिन भी सजा मिल गई, एक दिन, अज़रूए कुरान और हदीस दुनिया के 50,000 साल के बराबर कयामत का एक दिन है। सोचो एक दिन अगर सजा मिल गई तो क्या होगा। बाद में तो निकाल लिया जाएगा। बाद में अगर ईमान की जिंदगी, ईमान पर खात्मा हुआ, चाहे हम जितने गुनहगार हो, हमें निकाला जाएगा। लेकिन अगर सजा भुगतने के लिए एक दिन मिल गया तो समझ लो कयामत ही है। कयामत में भी पहला सवाल, नमाज पूरी है कि नहीं। बंदे ने कहा हाँ परवरदिगार पूरी। अच्छा ठीक है। अब दूसरा सवाल, और अगर पहले ही में आदमी पीछे हो गया, सीधा जहन्नम में डाल दिया जाएगा। ये सब बाकी बातें बाद में होंगी। इसलिए नमाज के आदी बन जाओ। आप गौसे आजम की नियाज कराओ, जरूरी है पहले नमाजी बन जाओ। गरीब नवाज के उर्स में जाते हो, जाओ पहले नमाजी बन जाओ, ताकि ये भी खुश हो जाए। अगर गौसे आजम ने ही कयामत में सवाल कर दिया, तुम मेरी नियाज कराते थे, मेरे नाम का चर्चा करते थे, ये बताओ तुमने हमारे किरदार पे कितना अमल किया, नमाजें कितनी पढ़ी, वहां क्या करोगे? सर झुक जाएगा शर्म से, शर्मिंदगी नहीं होगी। सच्ची मोहब्बत गौसे आजम की तो यह है कि उनके किरदार पे अमल करो। एक शख्स जो है, मौलाना साहब की तकरीर सुनी, दिल में ख्याल आया यार मौलाना साहब बात तो सही करते हैं, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, न जाने मौत कब आ जाए। मौत तो आना है, बचना किसी को नहीं है, सबसे छूट जाएंगे, आदमी सोच नहीं सकता। न जाने कब मौत का फरिश्ता आ जाए, रूह कब्ज कर जाए। दिल में ख्याल आया चलो तौबा कर लेना चाहिए, किसी अल्लाह के वाले के दामन को पकड़ लेना चाहिए, किसी से मुरीद हो जाना चाहिए। दिल में ख्याल आया, सच्ची तौबा का इरादा कर लिया। अब गया एक अल्लाह के वली की बारगाह में, कहने लगा हुजूर मैं तौबा करना चाहता हूँ। बोलो भाई सुभान अल्लाह। खत्म, सुभान अल्लाह कहना खत्म। आया, कहने लगा हुजूर मैं तौबा करना चाहता हूँ। अल्लाह के वली ने कहा सुभान अल्लाह, आ जाओ बिस्मिल्लाह। जैसे ही बैठा, कहने लगा हुजूर मेरी एक शर्त है। कहा बताओ। का जो आप कहेंगे सब करूंगा, आप नमाज को बोलेंगे नमाज पढ़ूंगा, रोजा रखने को कहेंगे रोजा रखूंगा, हज और ज़कात की ताकीद करेंगे वो भी करूंगा, सारे अमाल आपके मुताबिक करूंगा, मगर सरकार एक काम ना छोड़ूंगा। पूछा क्या? का चोरी नहीं छोड़ूंगा। क्या नहीं छोड़ूंगा? चोरी। पूछा क्यों? यही मेरा धंधा है, यही मेरा बिजनेस है, ये नहीं छोड़ सकता। उन्होंने कहा बेवकूफ, ऐसे तौबा की जाती है कि शर्तें लगा रहा है? ऐसा पीर मुरीद बनने आया है कि पीर से शर्त लगा रहा है, जा तेरी तौबा कबूल नहीं होगी।
दूसरे के पास गया, हुजूर तौबा करना चाहता हूँ, मुरीद बनना चाहता हूँ, सरकार आप मुरीद बना लीजिए, सब कुछ करूंगा मगर चोरी नहीं छोड़ूंगा। वहां से भी दुत्कार दिया गया। तीसरे के पास गया, वहां से भी भगाया गया। यहाँ तक के 99 अल्लाह के वलियों के पास गया, सबने दुत्कार दिया। आखिर में एक मिला, कहने लगा अगर तुम चाहते हो तुम्हारी तौबा कबूल हो जाए, एक ऐसा शख्स है कि जो तुम्हारी तौबा कबूल करा सकता है। पूछा कौन है? कहा बगदाद चले जाओ, गौसे आजम की बारगाह में चले जाओ, हो सकता है वो तुम्हारी शर्त मान ले। कहा हो सकता है वो तुम्हारी शर्त मान ले। भागा भागा गौसे आजम की बारगाह में गया। कहा सरकार तौबा करना चाहता हूँ, आपका मुरीद बनना चाहता हूँ। गौसे आजम ने कहा बिस्मिल्लाह, आ जाओ, बैठ जाओ। और हकीकत भी यही है कि किसी न किसी के दामन से वाबस्ता होना बहुत जरूरी है। हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं, मन ला शेख लहू फशेखुहु शैतान, जिसका पीर कोई नहीं है उसका पीर शैतान है। अब याद रखो, अगर खुदा न खास्ता मुरीद होने से पहले मौत आ गई तो कब्र में कौन बचाने आएगा? शैतान। वो तो खुद मरदूद बारगाह है। इसलिए अल्लाह के वलियों का सहारा होना चाहिए, निस्बत हाथ में होना चाहिए। अगर निस्बत तुम्हारे हाथ में है, किसी के दामन से वाबस्ता हो, किसी से मुरीद हो गए हो, तो यकीनन तुम्हारे काम आएगी। गौसे आजम रज़ी अल्लाह अन्हु की बारगाह में गया, कहा हुजूर मुरीद बनना चाहता हूँ। कहा बिस्मिल्लाह। कहने लगा सरकार सब कुछ करूंगा, जो आप चाहेंगे वो सब करूंगा, मगर सरकार झूठ नहीं, मगर सरकार चोरी नहीं छोड़ूंगा। गौसे आजम ने कहा बस एक शर्त है। बोला जी। का तू मुरीद है, मैं पीर हूं। मुरीद का मर्तबा कम है, पीर का मर्तबा ज्यादा है। अगर तेरी एक शर्त है तो मेरी दो। तेरी एक है मेरी दो। कहा हुजूर मैंने मान लिया। कहा पहले सुन तो ले। कहा हुजूर सुनाए चाहे ना सुनाए मैंने मान लिया। कहा फिर भी सुन तो ले। कहा ठीक है सरकार बताएं। कहने लगे तू जितना चाहे उतना चोरी कर, लेकिन दो बातों का ख्याल रखना। जैसे ही नमाज का वक्त हो जाए, अजान की आवाज आए, इंतजार न करना। जहां आजान की, हालांकि जमात ज्यादा अफजल है ना, जमात ज्यादा अफजल। अगर आप जमात से नमाज पढ़ेंगे तो 27 गुना सवाब ज्यादा मिलेगा। लेकिन गौसे आजम ने मसलहत से काम लिया। जो हम देख रहे हैं, गौसे आजम उससे बहुत आगे देख रहे हैं। गौसे आजम ने फरमाया जैसे ही अजान की आवाज कान में आए, इंतजार न करना, अजान खत्म होते ही मुसल्ला बिछा देना, नमाज के लिए खड़े हो जाना। कहे हुजूर मंजूर है। दूसरी शर्त क्या है? फरमाया चाहे कुछ भी हो जाए, गर्दन पे तलवार रख दी जाए, झूठ न बोलना। ठीक है। दो शर्तें क्या लगाई गौसे आजम ने? झूठ ना बोलना, जैसे ही नमाज का टाइम हो जाए फौरन नमाज के लिए खड़े हो जाना। आज भी हमारे भाइयों का हाल ये, झूठ को इतना छोटा समझते समझते गुनाह है। उनसे कहा झूठ ना बोलना, हजरत धंधा ही नहीं चलता। अगर झूठ नहीं बोलेंगे तिजारत नहीं होगी। खाली तुम ही तिजारत करने वाले हो। नबी ने तिजारत नहीं की, सहाबा ने तिजारत नहीं की। उन्होंने कैसे तिजारत की और झूठ से बच गए? आप भी तो उन्हीं के मानने वाले हो। क्या जरूरत है कि आप बताएं लोगों को कि खुदा की कसम 10 रुपए की खरीदो, मैं तुमको 12 की दे रहा हूं। कोई जरूरत नहीं खरीद बताने की। आप सीधा सीधा बताइए ये चीज इतने की है, बस खत्म बात। कोई झूठ बोलने का सवाल नहीं। गौसे आजम ने फरमाया झूठ न बोलना, जहां नमाज का वक्त हो जाए वही मुसल्ला बिछा लेना। कहने लगा ठीक है। अब गौसे आजम से मुरीद हो गया, तौबा कर ली। सरकारे गौसे आजम ने इरशाद फरमाया आज कहां का इरादा है? आज कहां का इरादा है? कहे हुजूर एक बड़ा शहर का अमीर है, मैं पहले से ताड़े आया हूं, उसके पीछे की दरवाजे की खिड़की खुली है, बस वहीं से जाऊंगा, उसके यहां से चोरी करके आ जाऊंगा। गौसे आजम ने कहा कल तक तू मुरीद नहीं था, अब इतने बड़े पीर से मुरीद हो गया। छोटी छोटी जगह चोरी मत कर, अगर करना है तो बादशाह के घर में चोरी कर। अल्लाह अकबर। कांप गया सरकार, क्या कर रहे हैं? चोर का दिल कितना होता है, पत्ते की तरह खड़कता है। आम
आप लोगों के घर में जाता हूँ, हालत खराब हो जाती है, डर लगा रहता है कहीं यहाँ से कोई ना आ जाए, कहीं वहां से कोई ना आ जाए। और आपको बादशाह के घर में भेज रहे हैं जहाँ लोग बरहना तलवारें लिए खड़े हैं, जान के लाले पड़ जाएंगे सरकार। गौसे आजम ने कहा उसका रास्ता मेरे पास है। कहा मेरे पास उसका रास्ता है। अच्छा क्या है हुजूर? कहने बस आंखें बंद कर, 3 बार मेरा नाम ले, या गौस या गौस या गौस। आंखें खोल के देख, बादशाह के शाही खजाने में नजर आएगा। अरे कह सरकार ऐसे ही तो पीर ढूंढ रहा था जो मेरे धंधे में भी मुआविन साबित हो जाए। अब गौसे आजम का नाम लिया, कहने लगा सरकार जाने का रास्ता तो बता दिया, आने का तरीका भी बता दीजिए। फरमाया जैसे जाएगा वैसे ही आ जाना। कहा ठीक। अब इसने आंखें बंद की, 3 मरतबा कहा या गौसल मदद, या गौसल मदद, या गौसल मदद। आंखें खोल के देखा, बादशाह के शाही महल में खड़ा हुआ, शाही खजाने में खड़ा हुआ है, सब कुछ देख रहा है। आंखें खीरा हो गई, जो जिंदगी में कभी न देखा था। आज वो हीरे नजर आ रहे हैं, जवाहरात नजर आ रहे हैं, कीमती अशिया नजर आ रहे हैं, बादशाह का ताज नजर आ रहा है, रानी का 9 लखा हार नजर आ रहा है। ये सारी कीमती चीजें देखते देखते काफी वक्त गुजर गया। अब ये उठा वो उठा, ये रख वो रख, सारी चीजें इकट्ठा करने में इसको सुबह का वक्त हो गया। बड़ी बड़ी गठरी में एक बड़ी गठरी तैयार की और जैसे ही उठा के चलना चाहा, कान में आवाज आई अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। कदमों में पेड़ियां लग गई। दिल में ख्याल हुआ चलो भाग लो। फिर ख्याल आया नहीं, आज पीर से वादे का पहला दिन है, जान जाती है चली जाए, नमाज पढ़ के ही यहां से जाऊंगा। बादशाह के शाही हौज में वजू करना है, कभी तसव्वुर में नहीं सोचा था। बादशाह के शाही हौज में वजू किया, शाही मुसल्ला बिछाया, नियत बांध के खड़ा हो गया। बादशाह की आंख खुली, अल्लाह अकबर। बादशाह की ये तमन्ना थी बरसों से। लोगों ने उससे कहा मुरीद हो जाओ, कहा नहीं, मुरीद उससे होऊंगा जो मेरे घर में पहरों के बावजूद आ जाएगा, उसी से मैं मुरीद होऊंगा। सुभान अल्लाह। अब बादशाह ने जैसे ही घर में देखा, एक शख्स खड़ा हुआ है, अल्लाह की इबादत में मसरूफ है, नमाज पढ़ रहा है। हैरत में पड़ गया, हमारे घर में इतने पहरे लगे हुए, उसके बावजूद मेरे घर में आने वाला कोई मामूली शख्स नहीं, अल्लाह का वली। सुभान अल्लाह। जल्दी उठा, जल्दी से उसने भी वजू किया, पीछे मुसल्ला बिछाया, इक्तदैतु बिहाज़ल इमाम। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। खुद न थे जो राह पर औरों के हादी बन गए, क्या नजर थी जिसने मुर्दे को मसीहा कर दिया। सुभान अल्लाह। गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि ये चाहने वाला, अब जब उसे देखा, उसने वजू हो रहा है, छप छप आवाज हो रही, मुसल्ला बिछा, इक्तदैतु बिहाज़ल इमाम कह के नियत बांधी। अब बताओ चोर साहब का हाल क्या, खाली तसव्वुर कीजिए क्या हालत होगी। कब कबाने में लगे हुए हैं, अब उनको ये मालूम नहीं कि मैं कब गिर जाऊं। बहरहाल किसी तरह नमाज पूरी की, जैसे ही सलाम फेरा उठ के भागने लगे। इन्होंने पकड़ लिया दामन, हुजूर ऐसे नहीं जाने दूंगा, सरकार ऐसे नहीं जाने दूंगा। अरे कैसे हुजूर, कैसे सरकार, न मैं हुजूर हूं न सरकार। का सरकार आप अल्लाह के वली है। नहीं भाई मैं वली नहीं हूं। का फिर का मैं तो चोर हूं। दूसरा वादा क्या था, झूठ नहीं बोलना। का मैं चोर हूं। का नहीं 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 सरकार आप लोग तो ऐसे ही कहते। देखो तुम्हें यकीन नहीं है, पोटली खोली कि देखो ये तुम्हारा ताज रखा है, ये हार रखा है, ये सारी कीमती अशिया रखी है, ये सब मैं चुरा के भाग रहा था, नमाज का वक्त हो गया इसलिए खड़ा हो गया। का नहीं हुजूर, आप लोग खाली सबूत दिखाने के लिए ये सब रख लेते, मैं तो उस वक्त तक जाने न दूंगा जब तक आप मुझे मुरीद न बना लेंगे। अब बेचारा चोर भी परेशान, यार मैंने आज पहला दिन, मैं तो नया नया मुरीद हुआ हूँ, न तो मेरे पास खिलाफत है, न मैं मुरीद बनाने के काबिल हूँ, करूँ तो क्या करूँ। परेशान हो गया, देखा ये मानने को तैयार नहीं। अच्छा कहा ठीक है भाई तुम मानने को तैयार नहीं हो, चलो जिसने मुझे तुम्हारे पास भेजा है हम तुम्हें उसके पास ले चलते हैं। सर पे हाथ रखा और 3 बार कहा या गौसल मदद, या गौसल मदद, या गौसल अल मदद। आंख खोल कर देखा, दोनों के दोनों गौसे आजम की बारगाह में खड़े। सुभान अल्लाह। गौसे आजम मुस्कुरा दिए, जोर से फरमाया बादशाह के घर चोरी करने गए थे कि बादशाह को चुराने लग गया। क्या हुजूर ये सब आपकी निगाहे करम है,
मेरा इसमें कोई कमाल नहीं है, हुजूर अब मैं क्या करूं, ये मेरा मुरीद होने के लिए तैयार है, मैं तो अभी सही तरीके से मुरीद भी नहीं बना हूं और ये कह रहा है मैं मुरीद हो जाऊंगा। गौसे आजम ने फरमाया अगर तू इस काबिल नहीं है तो बनाने वाला अब्दुल कादिर तुम्हारे सामने है। एक नजर डाली, उसे अपने वक्त का वली बनाया, फरमाया बादशाह को तू ही मुरीद कर क्योंकि इसका हिस्सा तेरे ही। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये दो बातों पे अमल बहुत जरूरी है, नमाज की पाबंदी। बस आखिरी बात, वक्त हो गया है। आज जो गौसे आजम की नियाज है ये बहुत फजीलत वाली बात है। सरकारे आला हजरत रजी अल्लाह ताला अन्हु गौस पाक की जो नियाज का खाना होता था, अगर एक दाना जमीन में गिर जाता था तो फरमाते हैं कि आप अपनी पलकों से उसे उठाते थे, सुभान अल्लाह, एक दाने को, इस कदर एहतराम। और एक रिवायत में है कि आप पूरे झुक जाते थे और अपने होठ से जबान से उठाया करते थे। यह है एहतराम। अव्वल तो उसमें कुरान की आयतें पढ़ी जाती हैं और गौसे आजम की बात है। हजरत शेख अब्दुल हक चिश्ती कादरी रहमतुल्लाह अलैह बहुत पाए के बुजुर्ग फरमाते हैं कि मैं मिस्र में गया तो मिस्र में एक साहब थे, उनका नाम था यूसुफ मिस्री। क्या नाम था? ये बिल्कुल जहन नशीन कर लीजिए, यूसुफ मिस्री। तो यूसुफ मिस्री साहब इन्होंने गौस पाक की नियाज शुरू की 1.25 किलो चावल से। 1.25 किलो चावल बनाए, बिरयानी बनाई या पुलाव बनाया, गौसे आजम की पाता शुरू कर दी। अगला साल आया, अगले साल और एहतमाम हुआ, साल 6 महीने पहले से पैसा जोड़ना शुरू कर दिया। जब बीवी बच्चों ने देखा कि यहाँ ये हाल है कि ये पहले से इंतजाम करते हैं, पहले घर वालों का खाना गौसे आजम की पाथा में होता रहा, फिर मोहल्ले वालों को पूछा गया, दिल में अरमान थे कि पूरी बस्ती वालों को पूछा जाए, पूरी बस्ती वालों को पूछा गया, फिर और ज्यादा तरक्की हो गई। इतना आलम ये हो गया, साल भर पहले से गौसे आजम की नियाज के एहतमाम में माँ भी पैसा जोड़ रही है, बाप भी पैसा जोड़ रहा है, भाई भी पैसा जोड़ रहा है, सारे लोग गौसे आजम की नियाज का पैसा जोड़ रहे हैं। यहाँ तक के इतने तुस्को इख्तिशाम के साथ गौसे आजम की 11वीं मनाई जा रही है कि दूर दराज से लोग गौसे आजम की 11वीं का साल भर इंतजार करते हैं कि यूसुफ मिस्री के यहाँ गौस की नियाज होने वाली है। सुभान अल्लाह। शुरू किया था 1.25 किलो से, अब तो कई कई देगे चल रही है। खाली अपना कस्बा नहीं, आसपास के गांव वाले भी आने लगे। मिस्र के अंदर उनकी ये 11वीं इतनी मशहूर हो गई कि साल भर पहले से लोग इंतजार करने लगे। कई साल गुजर गए। शेख अब्दुल हक चिश्ती कादरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं उस साल ये भी वहां मौजूद थे। उसी आलम में इनकी बीमारी बढ़ गई। 2 दिन पहले इतनी ज्यादा बीमारी बढ़ी, अपने लखते जिगर को बुलाया, अपने बेटे को बुलाया, कहे मेरे लाल आज मेरी तबीयत साथ छोड़ रही है, ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि मैं गौस की नियाज इस बार न देख सकूं। ए मेरे लाल, अगर मुझे नियाज़े गौसे आजम से पहले कुछ हो जाए तो खबरदार मोहल्ले वालों को न बताना, घर वालों को न बताना, रिश्तेदारों को न बताना, मेरी लाश को छिपा देना। जब सारे लोग 11वीं का खाना खा के चले जाए उसके बाद मेरे इंतकाल की खबर देना। अल्लाह की शान, जिस वक्त सुबह का वक्त था, सुबह सादिक, अचानक बाप ने बेटे को बुलाया, बेटा करीब आया, कहे मेरे लाल अब वक्त आखिर है, अलविदा कहा और उसके बाद रूह कब्र उनसरी से परवास कर गई। बेटे को हिदायत कर दी गई थी। बेटे ने अपने बाप का लाशा अपनी टपटपाई आंखों से एक कमरे के अंदर रखा, बाहर से ताला लगाया। अब सुबह से नियाज शुरू हो गई, नियाज हो रही है, आने वाले आ रहे हैं, खाने वाले खा रहे हैं, दूर दराज से लोग आते जा रहे हैं, सब लोग खाते चले जा रहे हैं। बाप की वसीयत थी, ये मेरे लखते जिगर जब सारे लोग खा ले उसके बाद 2 लुक़मे तू भी खाना, ये तेरे बाप की वसीयत है। सारे लोग चले गए, असर का वक्त करीब है, अब कोई आने वाला नहीं है। बेटे से खाया क्या जाएगा, जिसके घर में बाप का लाशा पड़ा हुआ है। उस बच्चे ने हाथ में लुक़मा उठाया है, दरवाजे में दस्तक हुई, जैसे ही दरवाजा खोला गया तो देखा एक साइल खड़ा हुआ है, एक फकीर खड़ा हुआ है। उस फकीर को अंदर बुलाया, फकीर सामने आया, कहे
है बेटा अभी से खा रहा है, अभी तो मैं भी भूखा हूँ, पहले मुझे तो खिला दे। कहा आइए, अपना खाना उनके सामने पेश कर दिया। कहने लगे अपने बाप को बुला, तेरे बाप के साथ खाऊंगा। कहने लगे अब्बा तो आराम कर रहे हैं, अब्बा अभी नहीं आ सकते। कहा अब्बा आराम कर रहे हैं, मुझे बता के किस जगह तेरे बाप आराम कर रहे हैं। अब बेटे की आंखों से आंसू छलक पड़े, सब्र का पैमाना टूट गया। दरवाजा खोला, बाप के लाशे के सामने फकीर को खड़ा कर दिया। फकीर ने जैसे ही उस यूसुफ मिस्री को देखा, फरमाते हैं ये मरा थोड़ी है, ये तो जिंदा है, थक गया था, आराम कर रहा है। हाथ पकड़ा, कहा उठ यूसुफ मिस्री, चल मेरे साथ में खाना खा ले। इतना कहना था, यूसुफ मिस्री उठ के बैठ गए, इनके साथ आए, एक लुकमा खाया। उसके बाद फकीर जाने लगा। बेटे ने आवाज दी, ये जाने वाले ये तो बता जाओ, इस वक्त मेरी मदद करने वाले तुम हो कौन, जिसने मेरे बाप को जिंदगी बख्शी है। कहने वाला कहने लगा तुमने पहचाना नहीं, तेरा बाप मेरा ऐसा आशिक है, हर साल 11वीं मनाता है। मैं कोई और नहीं, मैं वही अब्दुल कादिर जीलानी हूँ जो आज तेरे बाप को जिंदगी दे दी। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत। अल्लाह ताला से दुआ है कि परवरदिगार आलम हम सबको सही मानों में गौसे आजम की सच्ची मोहब्बत अता फरमाए। गौसे आजम वलियों के ताजदार है, इनके दामन से वाबस्ता रहिए। जो भी पीर आपको पसंद आता है, अमल होना चाहिए, तकवा होना चाहिए। आजकल बहुत सारे ऐसे भी पीर हैं कि जिनका ऐलान है नमाज में क्या है, मुझे देखो यही तुम्हारी नमाज है माज़अल्लाह। तो नमाज की पाबंदी जरूरी है, तकवे की पाबंदी जरूरी है। अगर किसी पीर में ये खूबी दिखती है, आप बिस्मिल्लाह, सिलसिला कहीं से मुनक़ता ना हो तो ऐसे से जरूर मुरीद हो जाइए, क्योंकि अगर आप मुरीद हो जाएंगे शैतान के मकरो फरेब से आपको अल्लाह ताला निजात अता फरमाएगा। मैंने अभी आपको बताया था बायजीद बुस्तामी का कौल, मन ला शेख लहू फशैखुहु शैतान, जिसका पीर कोई नहीं उसका पीर शैतान है। इसलिए बेहतर है कि शैतान से हम वाबस्ता न हो, हम गौसे आजम से वाबस्ता हो, गरीब नवाज से वाबस्ता हो। अगर अल्लाह वालों से वाबस्ता रहोगे, इंशाअल्लाह जहां ये जाएंगे हम लाख गुनहगार, बदकार, सियाहकार सही, लेकिन निस्बत तो है जहां जहां ये जाएंगे इनके नक्शे कदम को चूमते हुए हम भी जाएंगे। हम गुनहगार हैं, अल्लाह तौबा कबूल करने वाला है। हमारा यही ऐलान है, यही पैगाम है। और आज की सारी तकरीर का लुब्बो लुबाब ये है कि नमाज की पाबंदी बहुत जरूरी है। ठीक है, चाहे मर्द हो चाहे औरतें, क्योंकि कयामत के दिन सबको मुंह दिखाना है। नबी के सामने किस मुंह से जाएंगे? कब्र की तारीक कोठरी में नमाज उजाला है। आज एक बात और कह दें, हम और आप दूर भागते हैं नमाज से, लेकिन अमेरिका, अफ्रीका, लंदन, फ्रांस, ये बड़े बड़े मुल्कों में गैर मुस्लिम है, मुसलमान नहीं है, गैर मुस्लिम नियत बांधे खड़े हैं साहब। कोई कयाम में है, कोई रुकू में है, कोई सजदे में। अरे तुम लोग नमाज पढ़ो, तुम्हारे ऊपर तो नमाज फर्ज नहीं, तुम तो काफिर हो। नमाज मुसलमानों के लिए फर्ज है, तुम क्यों नमाज पढ़ रहे हो? तो वो लोग कह रहे हैं, उनका बाकायदा ऐलान है कि दुनिया के अंदर नमाज से अच्छी एक्सरसाइज है ही नहीं। हम इबादत की गरज से नहीं पढ़ रहे, हम तो खाली एक्सरसाइज की गरज से पढ़ रहे हैं। और हम महफूज रहते हैं, हमें बीमारियां नहीं लगती। और साहब मुसलमान ये कहा लिए नमाजों से दूर भाग रहे, बीमार हो रहे, मुसीबत में गिरफ्तार हो रहे। अभी एक ताजा तरीन वाकया, बड़ा दिल को तकलीफ पहुंची उससे। टीवी में बाबा जी आते हैं योगा वाले, हाँ, नकाब पहने, बुर्का नशीन, नकाब पहने हुए गई, बाबा मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। कम वक्त वहां जाके बताई फैन हो, तुझे फैन होना चाहिए गौसे आजम का, सैयदा फातिमा की फैन होना चाहिए। वहां जाके खड़ी हो रही कि मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। अच्छा, कैसे आना हुआ? कहा बाबा कोई योगा सिखा दीजिए। बाबा कहने लगे ये बताओ मुसलमान हो? हाँ मुसलमान। नमाज पढ़ती हो? नहीं। कहा जाओ 5 वक्त नमाज पढ़ो, इससे अच्छा कोई योगा नहीं। गैर तस्लीम करो, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा। अल्लाह ताला हिदायत अता फरमाए। इंसान साइंसी नुक्ते नजर से जब नमाज के लिए खड़ा होता है,
بدن میں جو خون گردش کرتا ہے ناک تک آتا ہے, کمر تک آتا ہے, تیز رفتار. اب اس کے بعد اتنی رفتار کم ہو جاتی ہے اس کی, پھر آگے بڑھنے میں بڑی پریشانی ہوتی ہے. اور جیسے ہی بندے نے رکوع کیا فوراً بلڈ آف سرکولیشن اوپر آ گیا, سجدے میں گیا سارا خون اس کے دماغ میں آ گیا. جو کبھی اسے یاد نہیں آتا وہ چیزیں یاد آنے لگتی. آپ نے دیکھا ہوگا جب آپ سجدہ کرتے ہیں تب طرح طرح کے خیالات آتے ہیں. گھر کا بھی خیال آئے گا, بیوی کا بھی خیال آئے گا, بچوں کی بھی دھیان آئے گی, سب کچھ خیال آئے گا اسی وقت, کیونکہ خون گردش کر رہا ہے دماغ میں. اگر آپ نمازی ہو جائیں گے سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں بڑھ جائیں گی, طاقت بڑھ جائے گی. یاد رکھو ایک وقت کھانا نہ کھانا مگر ایک وقت نماز نہ چھوڑنا. نماز کی پابندی ضروری, کیونکہ اگر آپ نے کھانا قیامت کے دن آپ کو حساب دینا پڑے گا. اگر اجازت ہو تو ایک بات اور کہہ دیں. حضرت حاتم اسم رحمۃ اللہ تعالی علیہ بڑے زبردست ولی کامل. ایک بار بادشاہ نے ان کی دعوت کی, حضور میرے گھر میں آپ کی دعوت ہے. آپ نے فرمایا تمہیں معلوم نہیں میں دعوت قبول نہیں کرتا, میں کہیں نہیں جاتا دعوت کے لیے. سرکار ایک بات کہوں گا, آپ آئیں چاہے نہ آئیں, بس اتنا بتا دوں دعوت قبول کرنا سرکار کی سنت ہے. اللہ اکبر, نبی کی سنت کا نام لیا, خاموش ہو گئے. ٹھیک ہے آؤں گا لیکن میری 3 شرطیں. پوچھا کیا؟ کہ پہلی شرط یہ ہے جو چاہوں گا وہ کھاؤں گا, ٹوکنا نہیں. کہ منظور ہے. کہ دوسری شرط یہ جہاں چاہوں گا وہاں بیٹھوں گا, روکنا مت. کہ یہ بھی منظور. کہنے لگا جو میں کہوں گا وہ سب کریں گے. کہا ٹھیک. بادشاہ نے یہ سوچا یہ اللہ والے ہیں, یہ قالین میں نہیں بیٹھیں گے, تخت میں نہیں بیٹھیں گے, چٹائی میں تو بیٹھیں گے. کھانے میں یہ قورمہ نہیں کھائیں گے, بریانی نہیں کھائیں گے, دال تو کھائیں گے. اور یہ اللہ والے کیا کہیں گے نماز پڑھو, روزہ رکھو, حج کرو, زکات کرو, اس کے علاوہ کیا کہیں گے؟ کہہ دیں گے ہاں. آج بھی آدمی یہی کرتا ہے, خالی ہاں ہی تو کہنا ہے. کہہ دیا کہہ دیں گے. اب ساتھ جو ہے دعوت ہوئی, حاتم اسم رحمت اللہ علیہ گئے, سیدھے گئے اور جا کے جہاں سب کی چپلیں رکھی تھی وہاں بیٹھ گئے. بادشاہ بھاگتا ہوا سرکار یہ کیا کر رہے ہیں, یہ قالین آپ کے لیے ہے, تخت آپ کے لیے. کہے بادشاہ اپنا وعدہ یاد کر, جہاں چاہوں گا وہاں بیٹھوں گا. خاموش ہو گیا. دسترخوان وہاں تک کھینچ دیا گیا, قورمہ بریانی اچھے اچھے کھانے سب حضرت کے سامنے رکھے گئے. حضرت شروع کیجئے. حضرت نے جھولے سے ایک سوکھی روٹی کا ٹکڑا نکالا, دسترخوان پہ رکھ دیا. کہا بسم اللہ. آپ نے اپنی وہی سوکھی روٹی کا ٹکڑا اٹھایا, کھانے لگے. سرکار یہ کیا کر رہے ہیں, یہ سب کھانے آپ کے لیے. کہے بادشاہ دیکھ میں نے تیرے دسترخوان میں رکھ کے یہ اٹھایا, خبردار ٹوکنا نہیں. بادشاہ خاموش ہو. جب کھانا ہو گیا کہا جاؤ ایک توا لے کے آؤ. توا جانتے ہیں کیا ہوتا ہے جس میں روٹی پکتی. کہا ایک توا لے کے آؤ, اس میں انگارے بالکل لال بھر کے لے کے آنا. کہا حضور کس لیے؟ کہا لے کے آؤ. توے میں انگارے لال بھر کے لائے گئے. حاتم اسم اس کے اوپر پیر رکھے کھڑے ہو گئے. کہا اے پروردگار آج تیرے فقیر بندے نے آدھا ٹکڑا روٹی کھائی ہے. اے مولا 5 وقت نمازیں پڑھی ہے, تہجد پڑھا ہے, اتنا تیرا ذکر کیا ہے, آج کا میرا یہی حساب ہے. کہا آؤ جس نے بادشاہ کے ہاں کھانا کھایا ہے, نعمتیں کھائی ہیں, سب کھڑے ہو اور حساب دو کہ کس نے کتنا کھایا ہے, کتنی عبادت کی ہے. لوگوں نے ہاتھ جوڑ لیے. سرکار آپ اللہ کے ولی ہیں, آپ یہ کر سکتے ہیں, ہماری یہ جرت نہیں ہے, ہماری یہ طاقت نہیں ہے, ہم جھلس جائیں گے, ہم برباد ہو جائیں گے. آپ نے کہا افسوس ہے تمہاری زندگیوں پہ, اس آگ میں کھڑے ہو کے حساب نہیں دے پا رہے, جہنم کی آگ میں کھڑے ہو کے اللہ کی بارگاہ میں کیسے حساب دو گے. بہتر یہی ہے کہ اگر تم کچھ اچھی نعمتیں اللہ کی کھا رہے ہو تو اللہ کی عبادت بھی تو ویسی کرو. اس لیے میرے بھائی آج سے توبہ کر لو. اگر واقعی غوث کے چاہنے والے ہو, خواجہ کے ماننے والے ہو, تو خواجہ کا کردار, غوث کا کردار اپنائیں گے. آج سے نماز کی پابندی ضرور کریں گے. بولیے اس میں ہمارا جائے گا کچھ نہیں. انشاءاللہ دولتیں ملیں گی, عظمتیں ملیں گی, رفتیں ملیں گی. انشاءاللہ تعالی آپ کو وہ کامیابی ملے گی جو آپ تصور نہیں کر سکتے. مگر کبھی یہ سوچ کے نہیں کرنا کہ ہم نماز پڑھیں گے تو ہم کو پیسہ ملے گا, دنیا کا خیال نہیں. آدمی آج کیا کرتا ہے, نماز پڑھنے مسجد گیا, دل میں خیال پڑوسی نے دیکھا کہ نہیں میں نماز پڑھ رہا ہوں, چچا دیکھ رہے کہ نہیں, یہ نماز نہیں ہے. جاؤ کسی کے کہنے پہ نماز کی ضرورت نہیں, خالص اللہ کے لیے عبادت کرو.
ये मत देखो कि फला साहब ने कहा है तो किसी ने भी कहा हो, आप अपने दिल का फैसला मानिए, नमाज पढ़ने जाइए, अल्लाह को राजी कीजिए। सरकार की सुन्नत है, नमाज नबी की आंखों की ठंडक है। अगर आपने नबी को राजी कर लिया, इंशाअल्लाह दोनों जहान आपके हाथ में होंगे। अल्लाह ताला हम सबको समझ की तौफीक अता फरमाए, गौसे आजम की सच्ची मोहब्बत अता फरमाए। परवरदिगार आलम अराकीन कमेटी ने जिस शान और शौकत के साथ इस महफिल गौस को सजाया है, परवरदिगार आलम उनकी इस कुर्बानी